Do you know how to report exclamatory sentences? Or in simple words, do you know how to change the exclamatory sentences from the direct to the indirect speech? This lesson is going to be very useful for you if you want to learn how to report exclamatory sentences. So stay tuned till the end of this lesson. Hello dear students, I am Dr. Madhuri Goswami. Dear students, इस वीडियो लेसन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, दिस वी विल लर्न विद ऑल द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। उससे पहले यह आवश्यक है कि हम यह जान लें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। Although we have studied kinds of sentences already in another video, but still it's a good idea to refresh your memory by telling you again what are exclamatory sentences. यद्यपि एक और वीडियो लेसन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सेंटेंसेस के सभी टाइप्स को समझ चुके हैं, still let's revise it. An exclamatory sentence makes a statement that conveys a strong emotion or excitement. Exclamatory sentence का हिंदी ट्रांसलेशन है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय से तात्पर्य है आश्चर्य, जो कि एक भाव है। इसी प्रकार के अन्य भाव और इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले स्टेटमेंट्स कहलाते हैं exclamatory sentences. So, an exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness, and anger, and ends with an exclamation point. That can be seen in this picture. So, dear students, जब इस प्रकार के exclamatory sentences within quotation marks में लिखे हों और हमें उन्हें indirect speech में change करना हो, तो कौन कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने होंगे? Let's learn this in this lesson. Well, let me just show you some examples of exclamatory sentences. Exclamatory sentences के कुछ examples हम यहाँ देख रहे हैं. What a beautiful day. What a nice car you have. How gorgeous the dress is. Hush, your father is sleeping. Hurrah, we are going to Miami. Oh, I missed the flight. How blessed I am to see such a sight. Dear students, when I read aloud all these sentences, you must have noticed that there are expression of emotions. For example, in the first sentence, there are certain expressions like expression of joy, surprise, amazement, regret, etc. इन sentences में दो प्रकार के sentences आप notice कीजिए. The first one is a complete exclamatory sentence. First type के sentences वे sentences हैं जो कि completely exclamatory sentences हैं with exclamation point. For example, what a beautiful day. What a nice car you have. How gorgeous the dress is. और second type के imperative sentences वे हैं जिनके beginning में एक interjection word exclamation mark के साथ यूज किया गया है और उसके बाद एक assertive statement और declarative sentence है. For example, notice the fourth sentence. Hush, your father is sleeping. Here the word hush is an exclamatory word and your father is sleeping is an assertive or declarative statement. Likewise, notice the next example. Hurrah, we are going to Miami. Hurrah एक exclamatory word है जिसके बाद exclamation mark के साथ यूज किया गया है और इसके पश्चात एक assertive statement है We are going to Miami. The same is the case with the next sentence. Oh, I missed the flight. This word oh is an interjection and it's also known as exclamatory word because there is an exclamation mark used after this word oh exclamation mark and then we have the statement that is an assertive or declarative sentence.
And now in this lesson we will learn how to report these both kinds of exclamatory sentences. Okay students, now let's know quickly these rules for changing exclamations into indirect speech. Well, these exclamations are expressed in the indirect speech by changing them into statements and expressing the spirit of the exclamation through the reporting verb और the adverb. यह आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल लग रहा होगा, बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, सो जस्ट लिसन केयरफुली. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इस केस में एक्सक्लेमेशंस को स्टेटमेंट्स में चेंज किया जाता है, यानी उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज किया जाता है. प्लीज रिमेंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन के केस में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट में परिवर्तित कर दिया जाता है. उसी प्रकार एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उनके स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए एक स्टेटमेंट की वाक्य संरचना का यूज किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इसे जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर. इसके अतिरिक्त जो एक्सक्लेमेशन का भाव है, जो मीनिंग है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है. उसी के अकॉर्डिंग एक एडवर्ब का भी यूज किया जा सकता है. रिपोर्टिंग वर्ब में किया जाने वाला यह चेंज यूजुअली एक्सक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड, विश्ड आदि शब्दों के साथ होता है और इनमें से कौन सी वर्ब यूज करनी है, इसका आधार है, इसका बेस है स्पीकर की टोन या जो इमोशन और सेंस रिपोर्टेड क्लॉज में एक्सप्रेस किए गए हैं. यदि उसमें हैप्पीनेस के भाव या इमोशंस हैं, देन वी से एक्सक्लेम्ड विद जॉय. यदि इसमें इमोशन सॉरो और रिग्रेट एक्सप्रेस किया गया है तो हम कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट. एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, the exclamation mark disappears in the indirect speech. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट इनडायरेक्ट स्पीच में ओमिट हो जाते हैं, अर्थात इनका यूज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता है. द रीजन इज क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है. अतः एक्सक्लेमेशन पॉइंट यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप या पीरियड का यूज किया जाता है. Well, now let's understand these rules through examples. He said, "What a beautiful sunset." This is in the direct speech. When we would change this into the indirect speech, we can change it in 3 ways. इसे 3 प्रकार से change किया जा सकता है. The first one is, he said that it was a beautiful sunset. Or, he exclaimed with delight that it was a beautiful sunset. Or, he exclaimed with delight that the sunset was very beautiful. Dear students, इन तीनों sentences में आप notice कीजिए. First thing, exclamatory sentence को statement में परिवर्तित कर दिया गया है, अर्थात इसका sentence structure एक statement यानी assertive और declarative sentence के रूप में change कर दिया गया है. और चूंकि यह एक statement है तो इससे पहले हमने कंजंक्शन वर्ड दैट का यूज किया है, कॉमा और स्पीच मार्क्स को हटाकर. सो वी रिमूव दिस कॉमा एंड द कोटेशन मार्क्स एंड वी यूज द कंजंक्शन वर्ड दैट. इसी के सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनसेट. If you can identify what is the tone or what is the emotion in the reported speech, then you can mention it in this way.
इस सेंटेंस में जब स्पीकर व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट कहता है तो हमें आभास होता है कि यहाँ पर एक डिलाइट, एक प्रसन्नता का भाव है. दैट्स व्हाई वी कैन से ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट. अब एक और पॉइंट आप यहाँ नोटिस कीजिए कि सेकेंड और थर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट्स को दो अलग प्रकार से लिखा गया है. इन द फर्स्ट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनसेट, और थर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में द सनसेट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. चलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. इस एग्जाम्पल में व्हाट अ ब्यूटिफुल सनसेट एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें किसी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं है, और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज करेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है. ऐसे केस में हम सब्जेक्ट इट को मान लेते हैं और वर्ब बी का यूज करते हैं जिसकी फॉर्म्स है इज, एम, आर, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस. और इस रूल का जनरल यूज इस प्रकार के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में किया जाता है जिनकी बिगिनिंग वाटर, व्हाटन, हाउ जैसे वर्ड से होती है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आए हुए एडजेक्टिव से पहले हम वेरी का यूज करते हैं, और यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई नाउन है देन बिफोर दैट वी यूज दिस वर्ड ग्रेट. जिस एग्जाम्पल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल जो कि सनसेट को डिफाइन कर रहा है. जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया गया जिसकी सब्जेक्ट और वर्ब है इट वॉज. And the third thing to be noted is in the third sentence that adjective beautiful से पहले very का use किया गया है. So the point to be noted is exclamations with what, how, etc. are changed into he said or exclaimed in wonder, with happiness, with joy, with delight, with disgust, etc. Dear students, whatever I have just explained, you can find those sentence structures on this slide. So you can take a screenshot or you can pause the video here and just note them down for further reference. ऐसे exclamatory sentences जिनमें subject नहीं हो उन्हें हम direct speech से indirect speech में convert करते समय कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं यू कैन फाइंड देम ऑन द स्क्रीन. सो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर लीजिए. So dear students, I hope you have understood how to report such kinds of exclamatory sentences that begin with what, whaten or how. And now in the next part of the lesson, we will take up some more examples and we will learn how to report another kind of exclamatory sentences that have the interjection word at the beginning, and in the next part of that sentence we have a statement. So see you in the next lesson. Bye for now. Thank you for joining. Happy learning.